very prestigious course, and I hope you will enjoy your tenure of this graduate program, and you will learn a lot of subjects, anatomy, physiology, biochemistry, and you become very skilled, and will be able to treat patient perfectly. Excuse me, sir. Sir, volume is too low. The voice आवाज आ volume रही is है? यस low. बताइए, यस बताइए, यस बताइए, लाउड Voice बोले. volume is low, sir. अच्छा, वॉइस वॉल्यूम इज लो. कैसे करेंगे? आवाज बढ़ाते हैं. अब आ रही है आवाज आपको? वो आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. प्लीज रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी. अब Yes, बता sir. दीजिए. थैंक यू फॉर योर But इंटरेक्शन. अभी हमने yeah, पूरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके. I repeat my part of lecture. That is not lecture, but it is a just welcome to you. I congratulate all of you to this new course, MBBS. It is a very prestigious course. I hope it is clear to you. Audible है हम आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. So I am Dr. Ejaz A. Rizvi, Associate Professor in the Department of Physiology, and I will teach you the following topics: cellular physiology and biophysics, membrane physiology, nerve physiology, muscular physiology, autonomic physiology, and neurotransmitters. These are the topics. I will cover these topics under 20 lectures, almost 20 to 25 lectures, and I will cover all these. Okay. This is the course approved by the Department of Physiology for my lectures. You can see the slide. ये हम इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे इस टॉपिक करेंगे. Now, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, how you define physiology? What is physiology? कोई डिफाइन कर सकता है? जी, any one of you can define physiology? it is the How study you of define normal functioning of the physiology? body. The study of Very normal good. functioning of the body. Physiology is very good answer. To under what physiology is, what it is related to the functional aspect of living organism. It is if but there is a broader definition. Physiology is a study to explain two things: physical and chemical mechanism responsible for origin, development, and progression of life. It is a very broad definition of physiology. चलो अब हो जाएगा. माइक नहीं नहीं हो जाएगा सर. अपना हमारा काशिफ, वो तुम्हारा वाला जो था वो दे दो यार. अजय इसमें माइक का ऑप्शन नहीं, सिग्नल स्लॉट है दोनों. So how you define physiology? Physiology is a study to explain physical and chemical mechanism. चलो इससे हम कर लेंगे. मोबाइल वाला नहीं है, मोबाइल वाला ला दीजिए. हाँ कान वाला ऐसा ना डिस्ट्रैक्ट. So physical, what is a physical mechanism? Can anyone give an example of physical mechanism responsible for three phenomena: origin is start of life; development growth and development, progression, continuation of life. So what is a physical phenomena? See for one of the example of physical mechanism is what? Acquiring the food. For food you have to move. You have to, if there is involvement of locomotive system or skeletal system. So it is physical phenomena. What is the chemical phenomena responsible for origin, development, and progression of life? The biochemical reactions going inside the cell. कोई एग्जांपल दे सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन का?
Any example of chemical mechanism? Cellular respiration. Respiration. Cellular respiration. Glycolysis. Oxidation of stuff. Formation of ATP is an example of chemical mechanism responsible for origin, development, and progression of life. Origin, you understand. Development, you understand. What you understand by word progression of life? ये कैसे, इसका एग्जाम्पल दीजिए कोई, प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ कैसे होगा? Growth in cells. नहीं, ग्रोथ एंड देखिए, To avoid death. there is a fixed lifespan of an individual. From birth, there is an end phenomena called death. So if somebody born and die, then there is an end of life. But human being continue to live. That is called progression of life by reproduction, by reproducing. You understand? So progression of life by reproduction. So reproduction is basically it is a very important uh, part of continuation of life. See, this is a very broad definition. If you follow this definition, it becomes too difficult for you to treat patients. So we try to make a smaller a part of definition of it, that is called clinical. हमारा कितना aspect है, जैसे कहते हैं ना कि बड़ी definition में से छोटी definition हमें कितनी जरूरत है to become a very good doctor. अब इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी फिजियोलॉजी में, लेकिन हमारा जो पार्ट है we will restrict it to clinical aspect of the physiology, that is called clinical physiology. What is clinical physiology? Any idea? Anyone? कोई बता सकता है? स्लाइड से पढ़ के भी बता सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपकी अंडरस्टैंडिंग को हम जज करना चाहते हैं कि आपने हमारी स्लाइड को कितना समझ पाया. आवाज आ रही है क्लियर? हेलो? Yes, sir. बताते रहिए. देखिए अब बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है. तो क्लिनिकल फिजियोलॉजी क्या है? क्लिनिकल फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी पर्टिकुलरली डीलिंग विद फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस इन डिजीज. अब जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जब कोई डिजीज होती है तो उसमें क्या होता है कि देयर इज चेंजेस इन दी फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस. जैसे आपको मान सपोज करिए हाइपरटेंशन हो गया, तो क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए? जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज थी 120 से, इट इज बियॉन्ड 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर राइज कर जाए तो क्या होगा? अब प्रेशर इंक्रीज कर गया तो उसमें क्या हुआ कि फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो गया, एंड दिस विल आल्सो क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स. थैंक यू. ये खाना बनाना हो. जी आवाज आ रही है क्लियर? कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? हमने हेडफोन यूज करने की कोशिश करी है. हेलो? ओके ओके, हाँ ठीक. थैंक यू. सो क्लिनिकल वी हैव टू बी, अगर हम फिजियोलॉजी में से पार्ट देखें तो क्लिनिकल फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हाँ थैंक यू. कौन सी किताबें आप लोग पढ़ना पसंद करेंगे? डिपार्टमेंट ने जो है 2 किताबें रिकमेंड की हैं, मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गाइटन एंड हॉल, और दूसरी बुक है गेनोंग रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी. 2 बुक्स हैं जो डिपार्टमेंट रिकमेंड करता है. बोर्ड ऑफ स्टडीज ने इसको अप्रूव किया है. बट स्टूडेंट एक किताब और नाम पढ़ते हैं जो उनके सीनियर्स बताते हैं, A.K. जैन. देखिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं, ना ही मना करते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप फिजियोलॉजी की और कौन सी बुक पढ़ेंगे, वो आपकी चॉइस होती है. अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि व्हाट अबाउट A.K. जैन. सो इट इज योर चॉइस. द चॉइस ऑफ टीचर, दीज 2 बुक्स, गाइटन एंड हॉल, गेनोंग रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी. सो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं रिकमेंडेड बुक के अलावा कोट करते हैं और कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो कंट्रोवर्सीज आर सेटल्ड बाय टेकिंग रेफरेंस ओनली फ्रॉम मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गाइटन एंड हॉल और गेनोंग रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी. सो इसलिए आप देखिए, जो आपको ये 2 टीचर्स की चॉइस की बुक हैं, और आपको जो ठीक लगे आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या सीनियर बताते हैं अक्सर स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि सीनियर वाला पार्ट भी स्टूडेंट फॉलो करते हैं. ओके, सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग बुक्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी? किसी को कुछ पूछना हो? पूछना नहीं है? नो क्वेश्चन?
Any question regarding books? Sir, No, sir. Samuelism. देखिए हमने आपसे पहले ही बता दिया, आपको फ्रीडम है, इट इज द फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट टू चूज एनी बुक। ओके, अब देखिए आपने बहुत अच्छी बात करी, आपने बहुत ही फ्रैंक और बोल्ड बात करी कि आपने एक बुक का नाम बताया। देखिए परेशानी कहाँ आती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इफ यू चूज बुक्स अदर देन गाइटन एंड गेनोव, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? नो डाउट वो बहुत ही क्रिस्प बुक है और उसमें से जल्दी से आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, पर उसमें समस्या जो उसकी प्रॉब्लम है कि जो आपको आगे जाके आगे जब आप पीजी की तैयारी करेंगे और जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, वो जो सॉल्व होती हैं, वो जो हम रेफरेंस फॉलो करते हैं वो गाइडन एंड हॉल करते हैं। सो जब आपको दोबारा से, आपने अगर गाइडन नहीं पढ़ी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम गाइडन, रिफ्रेश योर नॉलेज। फिजियोलॉजी तो आप पास कर जाएंगे, पर उसमें जो स्टैंडर्ड जो नॉलेज एक्वायर करें वो स्टैंडर्ड हो। तो ये सब बुक्स अच्छी हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, स्टूडेंट की चॉइस की बुक है वो हमेशा पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले लोग मना कर देते थे, बट आई हैव अ डिफरेंट व्यू कि भाई स्टूडेंट का राइट है, वो उसको जो बुक लगे अच्छी उसको पढ़ सकता है। टीचर की एडवाइस है कि वो अपनी एडवाइस बताए कि आप अच्छी बुक फॉलो करें, एंड टीचर स्टूडेंट ऑलवेज अ राइट कि वो नोट्स को फॉलो करता है, सीनियर की बात बोलता है। पर क्योंकि आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट में कर रहे हैं, तो हमारी, अगर आप अपने टीचर्स की बात समझते हैं, टीचर्स का एक्सपीरियंस समझते हैं, तो प्लीज फॉलो दीज टू बुक्स। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। ओके, चेंज करें, स्लाइड चेंज करें, स्टार्ट करें लेक्चर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल बहुत ऑर्गेनाइज रहना है और जो बातचीत करनी है ना लेक्चर्स की, उसमें सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टुडे वी हैव अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेमेलियन सेल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको जो जो सीखना है, एट द एंड ऑफ क्लास यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, you will be able to understand the structure and function of cell structure, cell cytoplasmic organelles, and and you will be able to understand the structure and function of the plasma membrane. Okay, now to understand life as a whole, it is very difficult task. So what you do, you try to understand the smallest structural and functional unit of life. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? Smallest cell. So we will try to study cell. अब cell, multicellular organism is made up of how many cells? About कितने cells से बनी होती है body? Human body कितने cells से बनी हुई है? Billions. नहीं, हाँ बिल्कुल, 100, almost about 100 trillion, right? 100 trillion cells, and these cells, all cells are different. They share some properties and they have some peculiar different properties. कुछ property share कर सकते हैं, share करते हैं, all cell will have that property. जो property share करते हैं, common properties का नाम बता सकती हैं, कोई property बता सकते हैं? Brain. नहीं, ये cells नहीं, वो bilayer, lipid bilayer। लेकिन जैसे जैसे थायराइड सेल है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड सेल्स होते हैं, वो T3 T4 बनाते हैं। पेनक्रियास के सेल जो हैं इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ कॉमन मैकेनिज्म होते हैं। अब जैसे एनर्जी ड्राइव का जो मैकेनिज्म होगा वो सारे सेल में कॉमन होगा। वो कैसे होगा? थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। This is the definition, but how you describe cell? ये तो definition हो गई, हमने functional बात बता दी आपको कि structural and functional unit of life is called cell. पर what is cell? How you define cell? What is cell? अगर हम आपसे पूछें कि भाई cell क्या है ये समझाइए, तो वो कैसे define करेंगे? Cell कोई बता सकता है, आंसर बता सकता है इसका? It is building block of organization. नहीं, वो तो हमने बता दिया, ये तो definition का पार्ट होगा।
It is a structure bounded by a membrane. Membrane, that membrane is called plasma membrane. Now, if you, what will happen when there is a boundary? There will be difference in two environment. There is an intracellular environment, the space inside the wall of जो रूम के अंदर की वॉल्स होंगी उसका जो स्पेस होगा वो डिफरेंट होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो देयर विल बी नाउ टू एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The environment internal to the plasma membrane is called interior of the cell, और बाहर वाला जो स्पेस होगा outside to the plasma membrane is called exterior. What are the other structures in that is present inside the cell? बता सकते हैं आप लोग कुछ? Anyone? Structures present inside the cell. Cytoplasm and all the cell organelles. Very good. Yes. Cell Very good. organelle, cytoplasm, nucleus. Very good. Very good. You have a very clear idea of structures inside the cell. Now, if you see, this is what I have in this slide, present slide. ये देखिए जो हम लोग cell देख रहे हैं, you are looking this cell under light microscope. So the structures are not very clear, not very well defined. But if you take this cell into the under the electron microscope, if you try to visualize this cell under the electron microscope, you will find lot of structures. Lot of structures. What are the structures? There is a nucleus, there is a microtubule, there is a secreting granules, there is a mitochondria, endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, and you can see the list. क्या क्या structures हो सकते हैं possible? Endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi apparatus, mitochondria, lysosome, centriole, cilia, flagellum. These are the important organelles, and they perform a specific function. What is the function of mitochondria? Yes, anyone? Energy house of Production. ATP generation. Very good. ATP, देखिए ATP प्रोडक्शन, बहुत अच्छी बात. तो देखिए ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ के आए. अब हम करते क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स को हर साल कुछ असाइनमेंट देते हैं, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी रेड दीज स्ट्रक्चर्स इन डिटेल्स. आपने सबने जब तैयारी करी है तो सारे स्ट्रक्चर्स जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं आपने डिटेल में पढ़ रखा है. अब आपका टास्क क्या है कि विदाउट कंसल्टिंग एनी बुक, ओके, राइट डाउन नॉट ऑल द स्ट्रक्चर, जो आपको पसंद आता हो. हर स्टूडेंट की फ्रीडम है कि वो गोल्गी एपरेटस पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखे, ओके, विदाउट कंसल्टिंग दी बुक. ठीक है. उसके बाद क्या करें कि गाइटन या गेनोंग या अपनी चॉइस की किताब को खोले और शेयर कराए, कंपेयर करे कि डिफरेंस क्या है जो उसने मतलब जो खुद से लिखा नॉलेज, अपनी नॉलेज से जो उसकी प्रेजेंट नॉलेज थी, और उसको बुक से कंपेयर किया. अगर आप चाहते हैं कि आप कंपेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे असाइनमेंट भेज दीजिए, मैं उसको जो है चेक करके आपको फीडबैक दे दूंगा. तो सेल ऑर्गेनेल्स पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आपका असाइनमेंट लेंगे. उस पर असाइनमेंट आप सबमिट कर दिए तो हम उसको चेक कर लेंगे और इससे हमारा जो और भी इसकी नॉलेज भी आ जाएगी. और बाद में जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का क्या काम? अगर बात करें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 1 इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल ऑफ द रूम? क्या काम करती है वो? सबसे पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम द जो भी, ऐसे अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ रहा है, अगर बैक्टीरिया वॉल नहीं होगी, पोरस होगी, तो बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा, पैथोजन अंदर चले जाएंगे. सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन. एंड when there is a boundary, there will be an internal environment and the external environment. Because of this membrane, the internal environment is always different from the external environment. Very important phenomena, important feature that because of the membrane के internal environment हमेशा differ करेगा external environment से. There is a intracellular fluid and there is a extracellular fluid. There will be, if you analyze these two fluid, you will find lot of difference, and this difference is a basis for the functional aspect of cell. जो function कर रहा है, living cell होने की क्या पहचान है? There will be the difference between the internal environment and the external environment. If disorders में क्या होता है कि यही जो difference होता है deteriorate होने लगता है, disturbed होने लगता है. अगर सोडियम ज्यादा होने, क्या जो वैल्यूज हैं चेंज होने लगे, पोटेशियम की वैल्यू चेंज होने लगे, तो क्या होगा? नॉर्मल से डिसऑर्डर हो जाएगा. जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस में, पोटेशियम कौन मेंटेन करता है बॉडी में? विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पोटेशियम इनसाइड द
बॉडी, कौन उसको जो है इसके पोटेशियम की वैल्यूज को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है? अगर यू टेक लॉट ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम कैसे लेते हैं? बहुत सारा। एनीबडी, एनीवन? व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम आयन? Sir, dates. नहीं, डेट। Banana. Very good. Banana. Date is good for iron. It also contain potassium, but the rich source of potassium is banana. Green leafy vegetables. अगर आपको, मैं आपको ये बात बताऊं कि अभी ये बहुत ही छोटा और बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन है, लेकिन किडनी डिसऑर्डर्स में, कार्डियक डिसऑर्डर्स में यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट पोटेशियम रिच फूड। जो पोटेशियम रिच फूड्स होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो क्या करते हैं कि पोटेशियम रिच फूड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आप पेशेंट को कहेंगे डोंट ईट ग्रीन लेफी वेजिटेबल, डोंट टेक बनाना, बिकॉज इफ यू टेक योर पोटेशियम इज ऑलरेडी हाई, इफ यू टेक, अगर पोटेशियम बढ़ जाए तो क्या होगा? हाइपरकैलेमिया इज अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज स्टार्ट हो जाएंगी, रिदम की एबनॉर्मलिटीज स्टार्ट हो जाएंगी। मेम्ब्रेन, अगर देखिए इनसाइड द सेल पोटेशियम लेवल रिमेन कांस्टेंट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज हीमोस्टेसिस। पोटेशियम लेवल मेंटेन रहेगा, सोडियम लेवल मेंटेन रहेगा, and this maintenance of constant environment is called hemostasis. I will take full lecture on hemostasis and multi-organ failure in next class. But this is maintained by a mechanism called transport across membrane. Membrane के across क्या हो रहा है? Transport हो रहा है, something coming into the cell, something leaving out of the cell. So these are the important functions performed by the cell membrane. Protection, it separates the internal environment and that create a difference between the internal environment and external environment, which is responsible for the functional aspect of cell. And another aspect is what? If there is changes, these changes can be corrected by transport across membrane. ये तो बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं अभी. We will build our lecture on these small things. What is cytoplasm? What is cytoplasm? Nobody is here. Cytosol plus cell organelles. Very good. Cytosol. देखिए एक very important thing to be remembered is what? Cell has a internal environment, has a external environment, and this environment there are two type of fluids. What? Aqueous fluid or lipid fluid. Nature of the fluid can be either lipid soluble or water soluble. Interior environment is also aqueous in nature, and exterior environment is also aqueous in nature. So cytoplasm is aqueous in nature, in which lot of substances are dissolved, like ions are dissolved, and lot of substances or organelles are suspended. Suspended समझते हैं? उसी में dissolve नहीं है, उसमें जैसे होता है ना कि आप शुगर लें, आप जैसे सपोज करें और पानी में डाल दें तो डिसॉल्व हो जाती है. सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है, डिसोशिएट भी हो जाता है सोडियम क्लोराइड. तो शुगर डिसोशिएट नहीं होती है, लेकिन अगर आप मतलब कोई जैसे सपोज करिए small wax granule लें तो what will happen? It will not dissolve, it will be remain suspended on the surface, और अगर heavy है तो it will go down to the bottom. अगर डस्ट डाल देंगे तो उसमें सस्पेंड हो जाती है, मूव करती रहती है, रैंडम मोशन में रहती है. तो साइटोप्लाज्म is an aqueous environment in which lot of cell organelles are suspended, and there are many things which are dissolved into it. Aqueous soluble thing will be dissolved and non-aqueous soluble things will be suspended. What are the organelles? ये तो हमने आपसे बता ही दिया. लेकिन ये जो आपने अभी तक देखे इसमें अब इन हम इतनी बात करने की जरूरत ही क्या है? आप तो ऑलरेडी सेल के बारे में जानते हैं सब लोग, ठीक है. हमारा पर्पस ये हमने आपसे बताया था कि फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और उसमें हमारा एक क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी होगा. क्या होगा? क्लिनिकल एस्पेक्ट. अब देखिए अगर लिपिड जमा होने लगे या कोई और चीजें सेल के अंदर एबनॉर्मली जमा होने लगे तो इट लीड टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. Now you have a task, write a short note, search on the net about the metabolic disorders. क्या क्या हो सकते हैं? And that if there is a disorder, there is accumulation of lot of substances inside the cell. जो अब क्योंकि जब तक हम देखिए पर्पस क्या है कि नॉलेज एक्वायर करना और डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना. साइटोस्केलेटन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स. क्या क्या होते हैं साइटोस्केलेटन्स में? क्या क्या आते हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को? आई एम ऑडिबल टू यू? साइटोस हाँ ओके. साइटोस्केलेटन से क्या क्या समझते हैं? क्या क्या उसमें उसके पार्ट वो चीजें स्ट्रक्चर्स कम अंडर साइटोस्केलेटन?
microtubule, cilia and flagella, intermediate lamina, microfilament. These are the साइटोस्केलेटन हैं ये सब. अब इनका फंक्शन क्या है? अगर देखिए, सबसे स्केलेटन मीन्स इट विल प्रोवाइड सपोर्ट. सो सेल के अंदर जो सपोर्ट होता है, इट प्रोवाइडेड बाय द साइटोस्केलेटन. सेल के अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स, केमिकल चीजें बन रही हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, वो इट इज दिस मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइटोस्केलेटल सिस्टम. और सेल टू सेल, अगर एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेट करेगा, व्हाट दिस हैपेंस थ्रू साइट. तो सेल सिग्नलाइजेशन कहते हैं हम इसको, सेल कम्युनिकेशन. अब इसकी क्या जरूरत है? इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ने की जरूरत है हम लोगों को? जिंदगी में जानने की जरूरत है भाई? अब जरूरत क्या है? अगर कोई काम की चीज नहीं है तो उसे पढ़ने की जरूरत है या नहीं है? बताइए. नहीं है ना? तो cytoskeleton, because of the disorders, there are many disorders, important disorders because of the cytoskeleton. What are the important disorders? Alzheimer's, आपने नाम सुना है Alzheimer's का? Accumulation or disorder of cytoskeletal proteins. नाम सुना है Alzheimer's का किसी ने? Yes, sir. Alzheimer's, इसमें क्या होता है? न्यूरॉन्स जो होते हैं वो में जो है टाउ प्रोटीन एक्युमुलेशन होता है, न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स, एक्युमुलेशन ऑफ टाउ प्रोटीन्स. एक और होता है एल्कोहलिक लीवर डिजीजेस. आवाज क्लियर आ रही है तुम लोगों को? उसमें आ रही है, बस अटेंड करो. हाँ, थोड़ा सा अटेंड कर लो तो हमको पता रहेगा, फीडबैक से पता हो जाएगा. क्योंकि यहाँ स्टूडेंट जो है ना हमारे अभी थोड़े शाई हैं, क्लास में शोर ही नहीं कर रहे. नहीं, वो पूछने में क्या होता है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है. देखिए, आप लोग स्टूडेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शोर नहीं हो रहा है क्लास में. सर आ रही है आवाज. हाँ देखिए, आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है शोरगुल्ला क्लास का. सो एल्जाइमर्स, साइटोस्केलेटन, मॉलिक्यूलर मोटर्स और नैनो टेक्नोलॉजी. आप लोगों टेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट था वो कहाँ से आया? इंस्पिरेशन कहाँ से आई नैनो टेक्नोलॉजी की? कोई बता सकता है मुझे? बायोटेक्नोलॉजी तो समझ में आता है, आप लोगों को सबको मालूम है. नैनो टेक्नोलॉजी की वो इंजीनियरिंग का पार्ट है, फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन उसकी इंस्पिरेशन आई है बायोलॉजिकल साइंसेस, सेल से आई है. नैनो मोटर्स का कंसेप्ट हुआ सबसे पहले, जो लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया. इनसाइड द सेल देयर आर स्मॉल, वेरी स्मॉल मोटर्स जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व थी. जैसे आपके ना BMW ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, कार है, मर्सिडीज है, i10 है, और भी बहुत सारी कार हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? दे आर कॉल्ड मोटर्स. What is the function? Transporting from one point to another point. इसी तरीके से inside the cell there is lot of transportation involved. अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूवमेंट होता है. एंड दिस मूवमेंट इज परफॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूलर मोटर्स. मॉलिक्यूलर मोटर्स, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मॉलिक्यूलर मोटर्स, कन्वेंशनल काइनेसिन और डायनेसिन है. एक्टिन बेस्ड मॉलिक्यूलर मोटर्स, मायोसिन 1 एंड मायोसिन 2. देखिए, हमने आपको अभी शुरू में असाइनमेंट दिया था सेल ऑर्गेनेल्स पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे भी आप लिख सकते हैं. लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो आई विल सजेस्ट सबमिट योर असाइनमेंट ऑन 2 टॉपिक्स. नंबर 1 साइटोस्केलेटन, नंबर 2 मॉलिक्यूलर मोटर. और इनकी इन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कम लिखिएगा, इनका फंक्शनल एस्पेक्ट, डिसऑर्डर का एस्पेक्ट ज्यादा लिखिएगा. समझ रहे हैं आप? देखिए, हमारा पर्पस क्या है कि फंक्शन फिजियोलॉजी रिक्वायर्ड, applied maximum. Okay, you understand what is my objective of giving assignment? That देखिए, जो कुछ पढ़े उसको क्लिनिक से कोरिलेट करना शुरू कर दिए. आज से डे 1 से ही कोरिलेट करना शुरू कर दिए. तो क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और आपको बहुत बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में. So if you are free to submit your assignment on any of the cell organelles, but my suggestion for you either submit on साइटोस्केलेटन और मॉलिक्यूलर मोटर. इसकी डिटेल्स में अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी तो हम बहुत ब्रीफ सुपरफिशियल चल रहे हैं, आगे इसकी सेल टू सेल इंटरेक्शन, कैम कैट मॉलिक्यूल जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल डिस्कस करेंगे. ओके, ये देखिए एक स्लाइड आ गई आपके सामने. ये जो है मॉलिक्यूलर मोटर्स का काम कर
कॉपी करिएगा, कॉपी पेस्ट करें तो बता दिएगा सर आई हैव कॉपीड फ्रॉम इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी कर सकते हैं। देखिए आप जितनी भी नॉलेज है, देखिए असाइनमेंट देखिए हमारी जो पर्पज है ना असाइनमेंट का, वो आप पे प्रेशर क्रिएट करना नहीं है, आपको मोटिवेट करना है, ठीक है। आप जब भी फ्री हो नेक्स्ट वीक के अंदर असाइनमेंट जमा करें। पहली चीज हमेशा याद रखिए कि अब यू आर ऑल मैच्योर, आई विल नॉट पुट प्रेशर, आई विल पुट मोटिवेशन। डिफरेंस बिटवीन यू एंड द हाई स्कूल स्टूडेंट दैट आई हैव टू मोटिवेट यू, देयर इज नो नीड ऑफ असाइनमेंट, आपको हमने बता दिया, आप पढ़ लीजिए, इट इज योर चॉइस। बट there is a होता क्या है with time there is changes in the level of motivation and my task is what कि आपका मोटिवेशन लेवल 5 साल तक ऊपर रखूं ताकि आप अच्छे डॉक्टर बन के निकले। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स आए यहाँ पर आज क्लास अटेंड कर रहे हैं उनकी एक क्वालिटी है, जानते हो क्या क्वालिटी है आप लोगों की? बताइए क्या क्वालिटी है? कोई बोलने को तैयार नहीं अपनी तारीफ में। अरे भाई आप सबकी एक कॉमन क्वालिटी है, बताइए क्या है? जी शिव कुमार जी बहुत हंस रहे हैं आप। फास्ट लर्नर है फास्ट लर्नर, और क्या है? एनीवन एल्स? साइलेंटली ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं सर। ये यार ये देखो ऐसा है ना, ये तुमने जो देखो बहुत सारे लोगों ने एंट्रेंस दिया, ठीक है, उसमें से 150 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है, 150 का, तो आपकी क्या खास बात थी जो आप आए? देखिए सारे लोगों की कॉमन क्वालिटी एक है, बता सकते हैं, कोई गेस कर सकते हैं? बताइए बताइए। बायो की एनसीईआरटी पढ़ी है सर सबने, 11th 12th। देखिए ये नहीं है, क्वालिटी है कि आप सब हार्ड वर्किंग है ना? हार्ड वर्किंग सब लोग, बताइए। ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, ये बात तय है, सेटल्ड है। जिसने क्वालिफाई किया है इसका मतलब ये है कि सब हार्ड वर्किंग है, तो ये क्वालिटी तो आप में ऑलरेडी है। अब बस खाली क्या फर्क पड़ता है, मोटिवेशन चेंज हो जाता है। मोटिवेशन घट गया हार्ड वर्किंग कम हो जाएगी, मोटिवेशन बढ़ गया हार्ड वर्किंग बेटर हो जाएगी। सो माय टास्क इज टू मोटिवेट, कीप यू मोटिवेटेड। So you are free, you have a lot of time, you can submit your assignment up to next week. अब एक और चीज, मैं पिछले 20 साल से क्लास ले रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, उसमें ये होता है कि जो मेरा असाइनमेंट है वो आपको पे करेगा। फर्स्ट ईयर में इट क्रेडिट्स 5 मार्क्स। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन, सेशनल में क्वेश्चन, वाइवा वोसी में क्वेश्चन जो है असाइनमेंट में आ जाते हैं 5 नंबर। और रियल लाइफ में आपको क्लिनिक्स में पता चल जाएगा कि भाई ये असाइनमेंट हमने किया था जिसकी वजह से आज तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है। ओके, तो यू आर फ्री टू सबमिट योर असाइनमेंट अप टू नेक्स्ट वीक। ओके, और प्लीज डोंट कॉपी इट। अगर आप कॉपी करते हो तो आप लिख दोगे सर मैंने इससे कॉपी किया है, मैं आपसे बातचीत करके आपको कन्विंस कर लूंगा, अगली बार नहीं करोगे आप। ओके, आप बिल्कुल फ्रैंकली बता दिए सर हम नहीं कर पाए, आपने कॉपी मार दिया, कॉपी पेस्ट, ठीक है? ओके सर पीपीटी फॉर्म में बनाना है या पेपर पेन? वो एक A4 व्हाइट शीट पे लिख के सबमिट कर दीजिए, ऑनलाइन मेल कर दीजिए, गूगल मीट पे आ जाएगी, क्लास हमने जनरेट कर दी है। देखिए हम आपकी क्लास जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं क्योंकि अब टाइम हमारा कम है और बातें ज्यादा हो रही है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम ही है, इसकी थिकनेस 7 to 10 नैनोमीटर्स होती है। लिपिड बाइलेयर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक्वस एनवायरनमेंट आउटसाइड, एक्वस एनवायरनमेंट इनसाइड, आउटसाइड। अब ये जो लिपिड बाइलेयर है इट इज व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसका जो बिहेवियर है ना, ये इसमें फॉस्फेट एंड है और एक लिपिड एंड है। फॉस्फेट इज वाटर सॉल्युबल, हाइड्रोफिलिक, एंड लिपिड एंड जो है हाइड्रोफोबिक है, जो है ना वाटर नॉन लविंग। तो एक्वस जो इसके जो हेड है वो फॉस्फेट हेड है, so they will align towards the aqueous environment, towards the extracellular side and towards the intracellular side. Composition of the membrane क्या है? अगर if you disintegrate the membrane, you will find 40% lipid, 55% protein and 5% carbohydrate. ये इसीलिए if you see, अगर हम कभी कभी डाइट में कहते हैं ना लिपिड मत खाओ, फैट मत लो, फैट का सोर्स क्या है? लिपिड का सोर्स क्या है? फैट है। तो बैलेंस डाइट के अंदर आपको ऑयल यूज करने ही करने हैं, बिकॉज
Oil is responsible for the synthesis of lipid and cholesterol is responsible for the synthesis of many hormones. तो लिपिड 40%, प्रोटीन 55%, कार्बोहाइड्रेट 5%. कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है? What are the important three types of lipids? Very good. Phospholipid, cholesterol and glycolipids. What are the major phospholipids? अगर आप देखें ये जो स्ट्रक्चर है, ये पोलर हेड है, ये फॉस्फेट है, ये टू लिपिड चेन्स. फॉस्फेटाइल कोलिन, स्फिंगोमाइलिन. स्फिंगोमाइलिन कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ब्रेन, न्यूरॉन्स में ज्यादा होता है. माइलिन शीथ में. माइलिन शीथ. So this is a very important. कभी ना वाइवा में पूछ लेते हैं कि लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं, मेजर व्हाट आर मेजर मेम्ब्रेन लिपिड, देन यू हैव टू आंसर दिस. ये कभी क्वेश्चन उसमें भी आ जाता है, क्या कहते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम. हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसकी, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, तो इसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन. अब कोलेस्ट्रॉल भी होता है मेम्ब्रेन के अंदर, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड and the fluidity of the membrane is determined by the cholesterol. If there is lot of cholesterol, membrane become more stable, less fluid. You understand? So stability is provided by the cholesterol. अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें लिपिड राफ्ट एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का डिस्कशन आएगा. तो याद रखिएगा कि the fluidity, flexibility of the membrane is determined by which molecule, which what substance is responsible? क्या रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल. अब एक और मेम्ब्रेन से एक और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने कहा था 5% ऑफ द मेम्ब्रेन इज बाय कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrates are attached to proteins or to phospholipids. So if they are attached to phospholipids, they are called glycolipids, and they play a very, very important role. They are antigenic in nature. Okay, you understand? Antigenic nature of the membrane is determined by glycolipids and glycoproteins. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम बताएं. ये देखिए, यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिख रही है जिसमें हो रहा है कि glycolipids and glycoproteins and analogs are being investigated as potential drugs. You can use these things can be drugs or can be used to produce vaccine. अब आजकल लेटेस्ट वैक्सीन आपने सुने होंगे कि जो कोरोना वायरस है उसके we are developing vaccine against the corona virus. So we are using different technology, and one of the vaccine is using ये जो इसका जो ग्लाइकोलिपिड्स को जो है यूज कर रहे हैं एंटीबॉडीज फॉर्मेशन के लिए. तो ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन आर एंटीजेनिक इन नेचर. उसका और कॉमन एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, आप लोगों ने आरबीसी ब्लड जानते हैं? ब्लड सुना है आप लोगों ने? What are the different blood groups? ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं? क्या है वो क्लास? बच्चे भाग गए. 4 phenotypes. 4 types. Four 4 types. A, B and O. And RH positive, RH negative. ये टाइप्स जो होते हैं, इसकी बेसिकली मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन होते हैं, देयर आर A antigen, there is a B antigen which is present on the plasma membrane. Okay, A antigen और B antigen. अब अगर दोनों प्रेजेंट है तो ए बी हो जाएगा, अगर कोई नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा? ओ ग्रुप होगा. अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो देयर विल बी नो एंटीबॉडी. व्हाई देयर इज नो एंटीबॉडीज? बिकॉज देयर इज नो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन अगेंस्ट द सेम एंटीजन. अगर ए है तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी टाइप की एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो जाएंगे. ये क्या स्ट्रक्चर आ रहा है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? अब हमने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंटीग्रेटेड दिया. देखिए यहाँ पे देखिए कि आपको फॉस्फोलिपिड्स दिख रहे हैं, येलो जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, कुछ तो सरफेस पे दिख रहे हैं, कुछ जो है थ्रू एंड थ्रू दिख रहे हैं. जो सरफेस पे दिख रहे हैं, these are all called, these are basically proteins. We classify protein into two groups, the peripheral proteins and another group is called integral proteins. तो peripheral proteins होते हैं वो सरफेस पे ही अटैच होते हैं, या तो इंटीरियर की साइड पे या एक्सटीरियर. लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो थ्रू एंड थ्रू होते हैं, उनके दोनों के अलग अलग फंक्शन है और उनसे कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज आर अटैच्ड. They are called glycoproteins or glycolipids. Functional significance of the plasma membrane. क्या फंक्शन है इसके? सेमी परमेबल है, इट विल अलाउ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस. कौन से कोई एग्जांपल दे सकते हैं जो फ्रीली इन सेल में एंटर कर सकता है और जा सकता है सब्सटेंस?
से सेल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अनरेगुलेटेड ग्रोथ फॉलोड बाय मेटास्टेसिस. So these proteins are responsible for cell to cell attachment and cell to cell signal from one cell to another cell. There is a passage of information. GI यहाँ पे देख रहे हैं ना, peripheral protein are attached to the membrane by GIP are collectively known as GIP anchored proteins. अब proteins को ये देखिए, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है थ्रू एंड थ्रू होती है एंड दे आर 6 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, सिंगल पास, डबल पास, 7 पास. इसके 7 टाइम इट पासेस थ्रू दी मेम्ब्रेन. इस 6 टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स. इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है इंसुलिन रिसेप्टर का. और भी एग्जांपल है, सोडियम पोटेशियम पंप इज द बेस्ट एग्जांपल. अब फंक्शंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, दे बिहेव लाइक प्रोटीन चैनल कैरियर प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स, they behave. Sodium potassium pump I have already told you. Now this is what we, अगर यहाँ पर आए तो ये आपकी पूरी चीज आ गई. इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ये सब लेयर पे. अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर फिक्स्ड और दे आर मूविंग. These structures, some of the structures are very rigid, they are fixed, but most of the protein, the plasma membrane, the structures are very fluid. They keep moving from one position to another position. Membrane is very flexible. अगर डैमेज हुआ था तो there is an immediate repair. Otherwise what will happen? अगर डैमेज हो गया तो क्या होगा? रिपेयर नहीं होगी. फ्लूइडिटी नहीं होगी तो रिपेयर नहीं होगा. So अगर आप ओवरस्ट्रेच करते हैं रप्चर हो जाता है. And then exocytosis is an example where there is a formation of rupture followed by repair. Exocytosis, phagocytosis आगे डिस्कस करेंगे. So ये फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्लाइड से पढ़ लीजिएगा, आगे डिस्कस करेंगे. आज शॉर्ट, कुछ लेक्चर शॉर्ट हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट में जल्दी से कवर करते हैं. इट डिफाइन सेल मेम्ब्रेन बाउंड्रीज, प्रोवाइड शेप टू सेल, maintain ionic gradient, maintain volume of the cell, transport across cell, segment enzymatic functions, receptor for hormone and second messenger immune function, resting potential. डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लासेस में. जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सेक्रेटरी, just enumerate, these are the list. We will take classes on these functions. Okay. Because of the membrane, I told you will find lot of this. ये पूरी तो मत याद रखिएगा, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अब मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पीएच, आज याद कर लीजिए और ऐसे हाँ, इसको क्लिनिक्स में अब क्लास का असली क्लास का मजा ना क्लास
कह रहे सर छोड़िए